This wilderness. It was on the banks of the Narmada River. It didn't seem to have this kind of potential. So this has been landscaped and created, and this environment has, as we can see, been very productive in giving us a message of unity with nature. ये जंगल सफारी का वो इलाका है जहां पर भारतीय पंछियों को रखा गया है। ये 7,500 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र, 15 मीटर इसकी ऊंचाई है, 150 मीटर लंबा और 50 मीटर ये चौड़ा है, और इसमें 30 अलग अलग प्रजातियों के 500 पक्षियों को रखा गया है। और उनके भोजन के लिए अगर बात करें तो 30 प्रकार के पौधे, घास भी लगाए गए हैं जो कि इन्हें भोजन उपलब्ध कराते हैं। और ये देखिए, पशु पक्षियों के साथ स्नेह का अपना आनंद है। और इससे पहले भी कई अवसरों पर प्रधानमंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए भी तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं कि कैसे वो पंछियों से बहुत नज़दीक रहना पसंद करते हैं। और देखिए, अगर आप बहुत सरलता से पंछियों से बात करेंगे, उनके साथ प्यार की भाषा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और ऐसा लग रहा है कि ये जो तोते हैं वो बहुत पहले से मिले जुले हुए हैं, इस तरीके का उनका व्यवहार। और ये अपने आप में बहुत ही मनमोहक नज़ारा, और प्रधानमंत्री पूरा आनंद लेते हुए इस समय। We've seen the videos of the Prime Minister when he's working on his files. Peacocks come up close to him and ask for a feed, which he very graciously offers them. But this is a great favorite for children, to be able to touch and pet the birds. और ये तोते जो हमने देखे, इसमें से एक तो बड़ी आसानी से चला गया, लेकिन दूसरा उसका मन नहीं था जाने का। और बड़ी ही ये अद्भुत और यादगार क्षण सभी को याद रहेंगे। Absolutely. What can be more friendly than friendly parrots? And we know that parrots can talk in human voices. Had we waited a little longer, well, these are beautiful pigeons that are being released on the occasion. Doves actually a symbol of peace in the world. And that is the hope, really, that the spirit of unity and universal harmony pervades here and inspires people who come to visit these beautiful sites at Kevadia. Tourists that come from all across the country and indeed from all across the world. जंगल सफारी से एकता का संदेश और उसके साथ शांति का स्वर। सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र ने यहाँ स्थित 2 चिड़ियाघर को पैदल चलकर घूमने वाले सबसे बड़े चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी है। और अभी कुछ देर पहले हमने तोतों का जिक्र किया था, और यहाँ पर एक बार फिर उनके साथ अटखेलिया करते। और जो भी पर्यटक यहाँ पर घूमने आएंगे, इस जंगल सफारी का लुत्फ उठाने आएंगे, वो इन दृश्यों को देखकर ही रोमांचित हो रहे होंगे। और इस समय प्रधानमंत्री पूरा समय दे रहे हैं, और अलग अलग, जैसा कि हमने बताया कि पंछियों के लिए बाड़े बनाए गए हैं, उनको पूरी आज़ादी दी गई है कि वो उस इलाके में उड़ान भर सकें, और उन्हें किसी तरह की बंदिशों में नहीं रखा गया है, जो सबसे अच्छी बात है इस जंगल सफारी की। And we can see that the birds are flying quite openly all over the place, and the Prime Minister is interacting in a sense with them. So there is really no barrier between the birds and the tourists.
Also a course- lesson for us that if you Yeah. approach the animal world with respect, you receive the respect right back, and there isn't that much of a distance between them and us. They understand energies as well as we do, and if they sense kindness in your aura, they will definitely respond in a positive manner and come close to you. Yes, but one needs to see that, the tourists who do enter this place don't take advantage of this kind of a situation as well. I mean, one understands that there is a certain level of maturity with which you have to deal with animals, and there could be some people, because if the fact is that if the birds are so close to you and you can actually touch them, you can actually harm them as well to some extent, and there are people who could do that. I think there are arrangements here to, in a way, give orientation to children in particular when they enter the aviary, that they have to behave in a certain manner. They can touch the birds, but ensure that they don't harm the birds here. निश्चित तौर पर जंगल सफारी में ख़ास तौर पर जो हर्बीवोर्स का इलाका है, यहाँ पर इस तरीके के इंतज़ाम किए गए हैं, और जो प्रशिक्षित गाइड हैं, जो स्वयं सेवक हैं, वॉलंटियर्स की भूमिका में, वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं लगातार। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरी उत्कंठा के साथ, जिज्ञासा के साथ इस जंगल सफारी का अवलोकन कर रहे हैं, नज़दीक जाकर के स्वयं अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो पक्षी हैं वो भी कुछ देर पहले हमने देखा कि उनके नज़दीक आकर काफ़ी प्रसन्न महसूस कर रहे हैं और दूर भी नहीं जाना चाह रहे। बहुत ही दिलचस्प आकर्षक परिदृश्य है ये, जो कि केवड़िया टूरिज्म परिसर में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। I suppose the birds also know that this is going live on Doordarshan, and there are so many cameras here, and birds we know love to preen, and what better an opportunity than this to preen and to be stars of the show. जैसा हमने पहले कहा कि जो मांसाहारी पशु हैं उनके लिए जो एनक्लोजर्स बनाए गए हैं, कांच की दीवार बनाई गई है, पारदर्शी दीवार है, काफ़ी मजबूत है, और उसी तरीके से जो यहाँ पर पक्षी मौजूद हैं उनके लिए एवियरी का निर्माण हुआ है, पक्षीशाला जिसे हम कह सकते हैं। एक बड़ा डोम है जिसमें अनेकों पक्षियों का वास है, कोई पिंजरा नहीं है, प्राकृतिक वातावरण है, वो उसमें घूम सकते हैं, उड़ सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। भांति भांति के तोते यहाँ पर मौजूद हैं, रंग बिरंगे। तो एक इसमें भारतीय सेक्शन है और एक एग्जोटिक सेक्शन भी है, जहाँ पर विदेशों से, अलग अलग जगहों से पक्षियों को लाया गया है और उनके प्राकृतिक निवास में उन्हें रखा जा रहा है। फूलों से सजाया गया है इस जंगल सफारी को। आज उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय समय समय पर अपने सुझाव भी देते रहते हैं, अगर कहीं कुछ उनकी गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश है तो। और उनके सक्षम और कुशल मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ही ये पूरे परिसर का निर्माण हुआ है, इसका मूर्त रूप इसने लिया है, और अब विधिवत तौर पर ये पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। और उम्मीद यही है कि बड़ी संख्या में जिस तरीके से यहाँ पर पशु पक्षियों का आगमन हो रहा है, अपने प्राकृतिक वातावरण में वो निवास कर रहे हैं, लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। और उम्मीद यही है कि जो लोग यहाँ पर आएंगे वो भी इस जंगल सफारी की जो गरिमा है उसको बनाए रखेंगे, और जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना है उसका यहाँ पर परिलक्षण हमें देखने को मिलेगा। मिलाकर के एक बहुत ही उत्साहजनक परिदृश्य है ये। दो वर्ष पहले जब यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया गया, तब शायद ही ये कल्पना की होगी और लोगों ने कि आने वाले सिर्फ 2 वर्षों में यहाँ इतने ऐसे और स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से और जो प्रकृति की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण होंगे, वो हमारे सामने दिखाई देंगे।
And these are the graceful cranes that we see, the saras. I think we spotted a pelican as well. Beautiful birds for bird watchers who like to do this as a hobby. This is a place to come to see so many of these beautiful Indian birds in one place in the largest geodesic dome in the world. 1100 से अधिक पक्षी और जानवर और दुनिया का सबसे बड़ा जियोडेसिक डोम, 150 मीटर लंबी इंडियन एवियरी और जो 50 मीटर चौड़ी और 18 मीटर ऊंची है, और एग्जॉटिक एवियरी 125 मीटर लंबी, 35 मीटर चौड़ी और 18 मीटर ऊंची. So yes, there are two aviaries. One is the Indian aviary, which is 150 meters long, 50 meters wide, 15 meters high, and there is the exotic aviary, which is 125 meters long, 35 meters wide, and 15 meters high. And each of these enclosures is specifically designed to keep these birds in their natural environment. You would have noticed that some of the birds seem to be hurt. Those are birds that have been, and some of the animals too, have been rescued and brought here to be taken care of. So this is a place which takes care of them, and we can see that the birds are quite comfortable and they are recovering also quite fast. And we see here a peacock, a peahen, walking amidst the cranes. यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसे देखने की रोचकता आपको यहाँ तक खींच लाएगी, और जो भारतीय पक्षीशाला, वहाँ से प्रधानमंत्री